Good afternoon, students. Class 11, Chapter 5, Morphology of Flowering Plants. Morphology meaning is study of size, shape, structure of plant, animals and microorganisms and the relationship of their constituent parts. So every living organism has a particular shape, size and structure. That living organisms, that study of that structures of the shape and size is called morphology. So in this chapter, we are going to understand the morphology of flowering plants, and we will study how the various parts of the plants are different from each other, and flowering plants varieties differ from each other in their arrangement of the parts. As you can see, there is a typical plant consisting of an underground root stem and above ground shoot system. So there are these type of two systems, root and shoot systems. And in the shoot system, it is having the stem, which is having nodes and internodes, buds, leaves, fruits, flowers, and the root system has primary root, secondary root. The radicle of the embryo give rise to the root system. And as you can see in the embryo, in the seed, this is the complete seed. This is a cotyledon, and here in the center there is an embryo which is having the radical root and the upper part which is epicotyle, by which it will become the shoot or leaves. And the radical grow into the primary root, that is the root show no nodes and internodes. Roots के अंदर nodes और internodes नहीं होते हैं. They do not bear any bud, उनके अंदर कोई bud भी नहीं होती है, कोई node internode भी नहीं होती है. They are positively geotropic and negatively phototropic. तो geotropic मतलब ग्राउंड की तरफ उगती हैं ये, और लाइट से अपोजिट तरफ जाती हैं. और रूट का नॉर्मली अंडरग्राउंड और नॉन ग्रीन रहती है, अंडरग्राउंड रहती है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता. फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम, रूट्स एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल. रूट पकड़ कर रखती हैं प्लांट्स को सॉइल में. रूट टिप सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. रूट टिप कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं. रूट सिस्टम तीन तरह के हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. टैप रूट सिस्टम, जहां पर रेडिकल कंटिन्यूअसली ग्रो करती है प्राइमरी रूट की तरह और साथ में कुछ ब्रांचेस भी निकालती है, लेटरल रूट्स जिन्हें कहते हैं, और ये पूरा मिलकर टैप रूट बनाती है. फाइब्रस रूट सिस्टम, जहां पर रेडिकल रिपीटेडली ब्रांच हो जाती है और एक टफ गुच्छा बनाती है रूट्स का स्टेम के जस्ट नीचे, और थ्रेड लाइक ये रूट्स रहती हैं. ये ग्रासेस में जैसे मोनोकॉट प्लांट्स में उगती हैं. एडवेंटिशियस रूट्स, शुगर केन के मेन रूट से ऊपर वाले सबसे लोअर नोड पर कुछ और रूट्स उसको सपोर्ट करने के लिए उगती हैं. इन्हें स्टिल्ट रूट्स कहा जाता है. These are adventitious roots because they are growing from the stem. Any part, any roots which is growing from any part other than the radical are called adventitious roots. शुगर केन में क्योंकि यहाँ नोड से आप देख रहे हो कि रूट्स आ रही हैं, तो ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं. रूट के रीजन्स क्या होते हैं? रूट के 3 रीजन्स हैं. सबसे नीचे रूट का कैप रहता है, which is a protective layer of the root meristematic tissue. यहाँ पर रूट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जहाँ पे एक्टिव डिविजन्स रहते हैं, सेल डिवाइड होते रहते हैं. उसके जस्ट ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन है जहाँ के सेल्स लंबे होते रहते हैं, और उसके ऊपर रूट हेयर बनने का रीजन है जहाँ पे रूट हेयर्स रहते हैं जो वाटर को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. टेंडर रूट एपेक्स इज प्रोटेक्टेड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप. Just above the root cap, extending a few millimeter above the meristematic region, the region of elongation rise in the proximal to the meristematic region. The region of maturation lies just above the region of elongation. Cluster of root arises from the epidermal cells of the region of the modifications. root की डिडक्ट हो गई सिलेबस से, तो we will not read modifications. Just diagrams आप देख रहे हो यहाँ पर.
अब स्टेम की बात हम करें तो नोड्स एंड द इंटर नोड्स बियर ऑक्सिलरी और टर्मिनल बड्स जनरली ग्रीन एंड यंग एंड लेटर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। तो नोड्स इसमें रहेगी, इंटर नोड्स रहेंगी स्टेम में, और ये असेंडिंग एक्सिस होती है, प्लम्यूल रीजन से निकलती है, उस पार्ट को स्टेम कहते हैं। और ये जनरल फीचर्स है इसके। इसके अंदर ऑक्सिलरी टर्मिनल बड्स होंगी, generally green or young and later become woody and dark brown. Function of stem: spreading out the branches, bearing leaves and flower and fruits. It conduct the water and mineral absorbed by the roots to the leaves and storage organs की तरह काम कर सकती हैं। stem modify हो सकती हैं, अपने आप को डेवलप कराने के लिए अपना फंक्शन चेंज कर सकती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम करा सकती हैं, प्रोटेक्शन फोटोसिंथेसिस करा सकती हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स और मॉडिफिकेशन स्टेम्स की भी डिडक्ट हो चुके हैं, जो हम नहीं करेंगे, बस हम उसका डायग्राम देख रहे हैं। तो स्टेम में कभी टेंड्रिल बनते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स, कभी there are thorns, stem changing to thorns, and leaf also changes into spines. मॉडिफिकेशन स्टेम्स के स्ट्रॉबेरी और ग्रास रनर्स कहलाती हैं। जैस्मिन प्लांट, ऑफसेट इकॉर्निया, स्टोलन मिंट प्लांट। मॉडिफिकेशन क्रासैंथेमम, पाइनएप्पल। लीफ पे हम आते हैं, बिकॉज मॉडिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमने वो डिस्कस नहीं करी। लीफ इज अ flat structure, laterally flattened structure that arises at the node and the shoot meristem. लीफ एक ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि शूट मेरिस्टम से अराइज होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेम से डायरेक्ट टच हो रहा है पेटियोल पार्ट लीफ का, एंड देन एक ब्लेड सा बना है जिसे बोला है लेमिना। इसके बीच में जो मेन वेन है उसे मिडरिप बोला है। एक और एक्सिलरी स्मॉल लीफ उग रहा है, सिस्टिक्यूल बोला है। और यहाँ पर एक इसके एंगल में छोटी बड है, उसे एक्सिलरी बड बोला है। लीफ के अंदर वेन्स होती हैं। अगर लीफ की वेन्स नेटवर्क की तरह हैं, यानी मिडरिप से पहले ब्रांचेस आ रही हैं और उन ब्रांचेस से भी फर्दर ब्रांचेस आ रही हैं, तो इस तरह के नेटवर्क ऑफ वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और ये डाइपॉड लीफ में होते हैं, नेटवर्क ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लेमिना। पैरेलल वेनेशन, यहाँ पर आप देख रहे हो पैरेलल वेनेशन, सारी जो वेन्स हैं वो पैरेलली रन कर रही हैं, मिडरिप के पैरेलल में रन कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। तो ये ज्यादातर मोनोकॉट लीफ ग्रासेस में देखा जाता है। और लीफ का काम रिजिडिटी और सपोर्ट देना है, वेन्स का काम रिजिडिटी और सपोर्ट देना है। और लीफ के अंदर लीफ का वर्क होता है फोटोसिंथेसिस करना। सिंपल लीव्स हो सकते, कंपाउंड लीफ हो सकते हैं। लेमिना जब पूरा कंप्लीट होता है बिना किसी इंसिजन के, बिना किसी कट के, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल लीफ। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है यूकेलिप्टस का लीफ होता है ऐसा सिंपल। जब छोटे छोटे लीफलेट्स ब्रेक हो रहे हो, एक लीफ छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया हो, उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसे नीम में आप देखते हो, रोज में आप देखते हो। लीफ बड in its axil leaflet does not have, कंपाउंड में एक्सिलरी बड नहीं होती। अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम और एक्सिस, किस तरह से लीफ स्टेम पे अरेंज होते हैं उन्हें फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड, तीन तरह की फाइलोटैक्सी होती हैं। सिंगल लीफ अगर एक नोड पे आता है अल्टरनेट मैनर में, तो वो अल्टरनेट वेरी अरेंजमेंट होती है, चाइना रोज और सनफ्लावर में देखी जाती है। Opposite a pair of leaf arises at each node lying opposite to each other. Calotropis guava, whorled, more than 2 leaves arising at the node, forming a whorl. 2 leaves से ज्यादा लीफ अरेंज होते हैं एक नोड पे और whorl की तरह इसको
वर्ल्ड इन्फ्लोरेसेंस फेलोटैक्सी कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस किस तरह से फ्लावर्स वियर हो रहे हैं स्टेम पे, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। रेसिमोस और इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की डिफरेंस भी यहाँ दे रखे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में पेडेंकल शो इंडेफिनिट ग्रोथ। आप देख रहे हो जिस जिस एक्सिस पे फ्लावर्स बॉर्न होंगे, तो फ्लावर्स हमेशा लेटरली बॉर्न होंगे एंड यंग फ्लावर टॉप पे होंगे, ओल्ड फ्लावर बॉटम पे होंगे। तो ओल्डर फ्लावर्स आर एट द बेस एंड द यंगर फ्लावर्स आर एट द टॉप, एंड वो कभी भी एंड नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इज इन एक्रोपेटल सक्सेशन। इसको एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं, जहां पर यंग फ्लावर ऊपर होते हैं, टॉप पोजीशंस लेते हैं, नए नए फ्लावर्स, और पुराने फ्लावर नीचे होते हैं। कैसी कैल्साल्पिनिया इसका एग्जाम्पल है। एंड ओपनिंग फ्लावर इज सेंट्रीपिटल, पेरिफ्री टूवर्ड द सेंटर। फ्लावर का ओपनिंग भी सेंट्रीपिटल होता है, पहले बाहर से ब्लूम होएगा, फिर अंदर का फ्लावर का हिस्सा ब्लूम होता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में पेडंकल डेफिनेट ग्रोथ शो करता है, अनलिमिटेड ग्रो नहीं करता, और टिप पे इसमें फ्लावर होता है। ओल्डर फ्लावर इस पे टॉप पे होता है और यंगर फ्लावर नीचे से निकलते हैं इसमें। एग्जाम्पल है जैस्मिन और हिबिस्कस। फ्लावर के पार्ट्स इस डायग्राम से हम देखने को मिल रहे हैं कि जिस फ्लावर एक्सिस है उसे पेडिसल बोला गया है। अब थैलेमस बोल दें या रिसेप्टिकल बोल लें, तो द portion or the structure of the flower which will bear all the reproductive part is receptacle. And on the receptacle there are firstly the outer wall is of green leaves which is called calyx, and their group which is the group of sepals. तो लीफी स्ट्रक्चर्स, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स को सेपल बोला, उसके ग्रुप को कैलिक्स बोला जाता है। उसके जस्ट अंदर कलरफुल स्ट्रक्चर्स उगते हैं जो कि पेटल्स कहे जाते हैं। पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोला जाता है। एंड देन स्टेमन आते हैं थर्ड वर्ल्ड, जहां पर फिलामेंट और एंथर कंटेनिंग स्ट्रक्चर स्टेमन कहलाता है, जिसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे एंथर में। यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनते हैं इन पोर्शंस में, एंथर हेड्स में देयर आर पॉलन ग्रेन्स। एंड स्टिग्मा इज द टॉप पार्ट ऑफ दिस पार्ट इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन फॉल करते हैं तो वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं और ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कंस्टिट्यूट पिस्टन। Reproductive part is the flower. It's a modified shoot with much condensed nodes and internodes. Stalk of the flower is pedicel, calyx and corolla non-essential whorls. Androecium and gynoecium are the reproductive whorls. सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हो सकती है फ्लावर की, जाइगोमॉर्फिक हो सकती है, या कोई फ्लावर इरेगुलर हो सकता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में रेडियस में फ्लावर अगर हम कट करें तो फ्लावर का इक्वल जो मिरर इमेज हमें मिलती है, इक्वल हाफ में वो बढ़ जाता है। एग्जांपल मस्टर्ड, दतूरा, चिली, इनके फ्लावर हमेशा एक्टिनोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक, पीस का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, बीन्स का, केशिया का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। इसमें हमेशा लेंथ वाइज कट करने पर यहाँ रेड कलर की जो लाइन है वो ही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और इसमें कैना के फ्लावर में इरेगुलर पेटल्स और पार्ट्स होने की वजह से ये इरेगुलर फ्लावर होता है। इसमें कोई भी लाइन से हम कट करके इसको इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते। ऑन द बेसिस ऑफ कितने अपेंडेजेस हैं फ्लावर में, कितने फ्लोरल पार्ट्स हैं, उसके बेसिस पे फ्लावर ट्राइमेरस हो सकते हैं अगर उसमें 3 के मल्टीपल में पेटल सेपल्स अरेंज हों, जैसे डैफोडिल्स, ऑर्किड्स और लिलीज। इनमें 3 के मल्टीपल में फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं। टेट्रामेरस फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें 4 के मल्टीपल्स में, सेट्स ऑफ 4 में फ्लावर होता है, जैसे क्रूसीफर,
ब्रासिकेसी मेंबर, क्रूसिफरस मेंबर, इसमें टेट्रामरस होता है। पेंटामरस, दोस फ्लावर्स एग्जिबिट सेपल्स, इसके अंदर स्टेमन्स ऑफ पेटल सेट ऑफ 5 में होते हैं। पेटूनिया इसमें आता है, चाइना रोज, सोलेनम इसमें आते हैं। तो ये पेंटामरस है। पोजीशन फ्लोरल पार्ट्स की ऑन द थैलेमस विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स, कितने कहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं। हाइपोगाइनस, जब गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन में होता है तो सुपीरियर ओवरी होती है, तो उस फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं, यानी कि एवरी अदर पार्ट इज बिलो द gynoecium, below the ovary. That ovary is called superior and the flower is called hypogynous. पेरीगाइनस, जब गाइनोशियम का पोजीशन और सेंटर में होता है, बाकी सारे फ्लावर के पार्ट सेम लोकेशन पे ही ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहते हैं, जिससे ओवरी हाफ इंफीरियर में रहती है। प्लम, रोज, पीच उसके एग्जाम्पल हैं। एपिगाइनस में ओवरी इंफीरियर होती है और बाकी सारे पार्ट उसके ऊपर टॉप पे होते हैं। तो गुआवा, कुकुम्बर, इसमें एपिगाइनस ओवरी, एपिगाइनस फ्लावर रहता है। ओवरी इज डाउनवर्ड एंड अदर पार्ट्स एट द टॉप। There are parts of the flower calyx, as you can see, green color, which cover the bud. 3 sepals are there, fused sepals are there, fused petals are there. Yani gamopetalous corolla is also shown, fused petals. Fused है यहाँ सारे petals. Free sepals, सारे sepals अलग अलग हैं. Here fused sepals are shown in the first figure. Here all the petals are free. So these are the examples, conditions of the corolla. If the petals are fused, that condition is called gamopetalous. And petals are free, that is called petals are free, polypetalous. Same way, if the sepals are free, polysepalous. If the sepals are fused, gamosepalous. Arrangement of the sepals की arrangement in relation to one another in the bud conditions. वेलवेट एस्टिवेशन, जिसमें सारे के सारे पेटल्स जस्ट टच होते हैं एक दूसरे के और कोई विदाउट ओवरलैपिंग। जैसे कैलोट्रोपिस के बिल्कुल दूर दूर रहते हैं सेपल्स। यहाँ ट्विस्टेड, जहाँ पर एक पेटल दूसरे को ओवरलैप करता है, एक अंदर रहता है मार्जिन, एक बाहर, अंदर बाहर ऐसे रहता है, तो एक डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है। इंडिकेट सेपल्स पेटल्स कंप्लीटली इंटरनल भी होते हैं, 1 सेपल पेटल कंप्लीटली एक्सटर्नल होता है और 3 ओवरलैप्ड होते हैं। मैक्सिलरी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट को भी कहा जाता है, एक कंप्लीटली बाहर है, फिर उससे थोड़ा छोटा पेटल मिडल में है और सबसे छोटे पेटल्स कनेक्टेड इन द सेंटर। एंड्रोशियम में स्टेमन्स का ग्रुप आता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स। Anther contain pollen sac or microsporangia in which numerous microspores or pollen grains are present. तो एंड्रोशियम में एंथर के ग्रुप को कहा जाता है, स्टेमन के ग्रुप को कहा जाता है एंड्रोशियम। इसमें अगर सिंगल एंथर को कट करके देखें तो एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स में 2-2 चेम्बर्स होते हैं, यानी कि द pollen sacs are 4 in number total. Adelphi means union or attachment of the stamen. Monoadelphous means single bundle is there of the stamen group, and anthers are free but united at the filaments. So it is called monoadelphous viscous. Filaments are united to form 2 bundles. Anther remain free. So it is a diadelphous beans and peas. And polyadelphous, in the few plants, filaments united to form more than 2 bundles. Anthers remain free. यहाँ पर 2 से ज्यादा बनाते तो पॉलीएडल्फस,
तो यहाँ पर आप देख रहे हो anthers are united in many bundles. Anthers are free, just filaments are fused above the below the ovary, and here you can see in peas nine have nine stamens have made one group, and one stamen is single, it's free. And here you can see monoidal for staminal tube. It is a staminal tube, and stamens are there at which are unilocular anthers are there in the China rose. Gynoecium structure, you can see female reproductive part. It is one or more carpels. It consists of pistil composed of one or more carpels, megasporophyll. Types of ovary based on the number of carpels: monocarpellary ovary, bicarpellary ovary, polycarpellary ovary. Monocarpellary ovary, which has two or one carpel, which has only one carpel, example beans. Bicarpellary ovary, which has two carpel, example sunflower, tridax. Polycarpellary ovary, more than two carpels, tricarpellary, tetracarpellary, pentacarpellary, lemon में. Syncarpous ovary, that means all the carpels are fused. Apocarpous ovary means all the carpels are free. रोज लोटस में भी फ्री होते हैं सारे कार्पल्स, एंड धतूरा और पैपेबर में फ्यूज्ड होते हैं. Placentation is a cushion-like structure in which the ovules are attached. The mode of the attachment of ovules on the placenta is placentation. Types of placentation: marginal placentation. The placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules born on the ridge, forming two rows. So ovules are there on the margin. Peas और beans में देखी जाती है. Precentral placentation, ovules are born on the central axis and septa नहीं होता. सर्कल में सेंटर में ovules देखे जाते हैं. Basal placentation, placenta develop at the base of the ovary. Fruits, botanically a fruit is mature ripened ovary, जिस ovary में fertilization हो चुका है उस ovary में fruit बनता है, and it is formed by the fertilization. The ovary it is called parthenocarpic fruit. अगर ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बना तो इसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं. जैसे बिना फर्टिलाइजेशन के ऑरेंजेस में, ग्रेप्स में अगर मैच्योर हो जाए, वो फ्रूट बन जाए, तो उनको पार्थेनोकार्पिक बनाना है, उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे. पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी. फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं. इट इज द वॉल ऑफ द फ्रूट. लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो, पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू आउटरमोस्ट एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनरमोस्ट एंडोकार्प. ये ड्राई या फ्लैशी भी हो सकती है. फ्रूट वॉल, द पेरिकार्प थिक और फ्लैशी, डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपी, मिडल मीजो एंड द इनर एंडोकार्प. 3 लेयर्स होंगी अगर फ्लैशी फ्रूट्स है तो. और इधर स्टोनी फ्रूट है तो इसमें mesocarp is the core of the coconut, and central cavity you can see endocarp is stony. The cover of the coconut is stony endocarp, and inside the endocarp there is the endosperm. Central cavity is there having water. Epicarp is the thin layer of the, which is the outermost layer of the coconut. There is a thin layer, it's epicarp. Structure of dicotyledonous seed, fertilized ovule सीड में डेवलप हो जाती है. जैसे मैच्योर ओवरी फ्रूट में डेवलप हो रही है, ऐसे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल किस में डेवलप हो रहा है? सीड में डेवलप हो रहा है. सीड डिपेंडिंग ऑन द सीड कोट, depending on the cotyledons, there are two types of the seed. If it is seeds are having two cotyledons, it's called cotyledon divided into two parts, and it's called dicotyledonous seed. सीड 2 cotyledons का होता है. इसके पास सीड कोट है, माइक्रोपाइल पॉइंट है, कोर लाइक जो गैस एक्सचेंज और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, इलम रीजन है. और ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर 2 cotyledons हमें दिख रहे हैं, और बीच में एम्ब्रियो हमें दिख रहा है, जिसकी लोअर पोर्शन रेडिकल, अपर पोर्शन प्लम्यूल है. एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस है एंड रेडिकल प्लम्यूल पार्ट है अपोजिट एंड पे. तो इसकी बीच की ये एक्सिस एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई. ये एम्ब्रियो है, इसका नीचे का पार्ट रेडिकल है,
और इसका अपर पार्ट प्लम्यूल है। सीड विच कंटेन एंडोस्पर्म एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगा कैस्टर कोकोनट। सीड विच डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। स्टोरिंग फूड मटेरियल कोटिलिडन्स, बीन्स, पीज, मस्टर्ड, डाइकोट्स, ऑर्किड्स, मोनोकॉट्स। तो ये दिया हुआ है सीड विद टू कोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडनस सीड, एग्जांपल मस्टर्ड, बीन, पीज। सीड विद वन कोटिलिडन, मोनोकोटिलिडनस सीड, कोकोनट, ऑर्किड्स। Structure of monocotyledonous seed. Monocotyledonous seed are endospermic seed, but some in orchids are non-endospermic seed. मोनोकॉट सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ऑर्किड एग्जांपल है मोनोकॉट का, जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक भी है। In seed of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. सीरियल्स में मेज की तरह सीड कोड इतना पतला होता है कि फ्रूट वॉल से ही जुड़ जाता है। एंडोस्पर्म इस बल्कि एंडोस्पर्म ज्यादा होता है, उसी के अंदर फूड होता है। आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म की सेपरेट करती है एम्ब्रियो को बाय प्रोटीनेशियस लेयर, एक प्रोटीन की लेयर उसको कवर करके रखती है, सेपरेट करके रखती है, जिसे एल्यूरन लेयर कहते हैं। तो यहाँ पर मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ पर एल्यूरन लेयर आपको दिख रही है चारों तरफ से, इस एंडोस्पर्म को सेपरेट कर रही है स्क्यूटिलम कोटिलिडन्स से। सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं BR is for bracteate, K symbol is for calyx, C is for corolla। तो ये तो आउटर मोस्ट यहाँ पर ग्रीन कलर के बना रखे हैं स्ट्रक्चर्स दैट आर रिप्रेजेंटिंग द calyx। How many are there? So there are four, two in the outermost layer and two in the innermost layer. So their arrangement become 2 plus 2. So we will write K 2 plus 2. And here at the top, the front, first में हमने एक प्लस का साइन और उसके ऊपर सर्कल बनाया, दैट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि इट इज सिमेट्री ऑफ द फ्लावर सिंबल। रेडियल सिमेट्री के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टेमन और गाइनोशियम दोनों दिख रहा है। तो वी आर राइटिंग द सिंबल बाइसेक्सुअल हेयर। केलिक्स का नंबर हमने लिख लिया 2 plus 2। कोरोला, कोरोला इज शोन 4। कोरोला फ्री है, एक दूसरे से वेलवेट एस्टिमेशन में टच ओवरलैप नहीं कर रहे, सिर्फ टच है, तो ये आपको डायरेक्ट 4 लगेगा कोरोला। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ऐसे ही जैसे पहले कैलिक्स था, 2 बाहर है और 4 अंदर है, तो उनको इस तरह से लिखना पड़ेगा 2 plus 4। एंड गाइनोशियम फ्यूज्ड है, 2 gynosioms are fused because they are you can see they are separated by a particular covering, so it is showing that ये gynoecium fused है। पेरियांथ P से शो होगा, एंडोशियम A से शो होगा, G से गाइनोशियम शो होगा। G के नीचे अगर डैश लगा है तो सुपीरियर होगी, G के ऊपर लगा है तो इंफीरियर होगी। अब हम आगे देखें कुछ फैमिलीज। फैमिली Fabaceae is deducted, so we will not describe it. We will describe the Solanaceae family। फैमिली में टोमेटो और पोटैटो की फैमिली है। यहाँ पर आपको सोलेनम निग्रम मकोई का प्लांट दिख रहा है। एंड प्लांट मोस्टली हर्ब और श्रब्स के फॉर्म में दिखेंगे, छोटे ट्रीज के फॉर्म में दिखेंगे, और रेयरली ये वुडी होंगे और एरियल और इरेक्ट रहेंगे, सीधे रहते हैं ये जमीन पे ग्रो होते हुए। इनकी ब्रांचेस भी होती हैं, सॉलिड भी हो सकती हैं, हॉलो भी हो सकती हैं, हेयरी भी हो सकती है, ग्लैबुलस भी हो सकती है। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो की सोलेनम ट्यूबरोसम की अंडरग्राउंड स्टेम होती है। लीव्स अल्टरनेट रेयरली अल्टरनेट सिंपल रेयरली पाइनेटली कंपाउंड लीफ होता है इसका। स्टिपुलेट वेनेशन रेटिकुलेट होती है। सोलेनेसी में इस तरह से आपको याद रखना है। फ्लोरल कैरेक्टर इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी साइमोस इनफ्लोरेसेंस रहती है सोलेनम में। फ्लावर बाइसेक्सुअल रहता है, सेपल्स 5 रहते हैं, यूनाइटेड परसिस्टेंट।
वेलवेट एस्टिवेशन रहती है। एंड्रोशियम स्टेमन 5 है, भी पेटलस है ये। एंड गाइनोशियम बाइकार्पुलरी सिंकार्पस and ovary superior bilocular placenta swollen with many ovules. Fruit berry या capsule seed many and endospermous and floral formula is given यानी यानी ये रेडियल सिमेट्री वाला फ्लावर है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल दिखाया है, फिर बाइसेक्सुअल का, फिर कैलिक्स का नंबर 5 और फ्यूज दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। ये ग्रीन वाले केलिक्स हैं और ये फ्यूज्ड है आपस में। यहाँ पर ये आप देख रहे हो लिंक्ड हो रहा है, एक सेपल दूसरे से लिंक्ड हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। तो इट इज द केलिक्स इज द सेपल्स आर फ्यूज्ड। सो के आगे लिखा है ब्रैकेट में 5, तो फ्यूज्ड 5 सेपल्स को बता रहा है। कोरोला ऑल्सो is shown, corolla is also shown fused. So C5 bracket, androecium is free, but it is joined to the corolla. So adhesion is shown like this, and gynoecium is too fused. So with this, our chapter 5 morphology of the flowering plants is finished. I hope it is explained to you and you have understood it very well. And I think you will be learning and reading it through your own notes through NCRT, and then you will be coming up with the doubts. So with this, we have discussed the seeds, the fruit, the placentation, the ovary, syncarpus, and syncarpus, apocarpus, gynoecium. We have studied androecium. We have studied adelphi, diagram, monoadelphus, and polyadelphus. And velvet estivation, twisted and imbricate estivation, maxillary estivation, hypogynous flower, perigynous, types of flowers on the basis of parts, type of flower on the basis of symmetry. We have studied all with the help of the diagram. Studied the phyllotaxy and the inflorescence. We have studied leaves and we have studied the stem, and then we have studied the roots and basic general regions in the roots we have read. So this was the morphology of the flowering plants. I hope this is clear to you. You will come up with your doubts. Ask me in your classes. Thank you and have a nice day.